Hello everyone. Good afternoon to all. Good afternoon to all committee members and good afternoon to all my EDU mates. And first and foremost, I would like to welcome our committee members to our presentation day. And now I am Anmol, uh, along with my team, along with my teammate Himanshu, Pooja Goswami, and Pratham Gupta. We are over here to present our presentation and on a topic that is fast track merger under Companies Act 2013. So basically, before starting our PPT, let's discuss about something. What is merger? So merger means. So basically, merger means when two separate entities come together to form a separate entity. Two different entities come together to combine and to form a separate entity. That is called a merger. So basically, that is merger. But what is fast track merger? Is it really fast? So we'll check it later. So basically, let's suppose we are all company secretaries. No offense to the committee members because you are already company secretary. And let's suppose we are company secretaries and we are assigning a work of fast track merger. So what will we do first? So we'll have to check the provision in which provision it will be given. So I am a company secretary. So what should I have to check? So I have to check the provision. So it is given in the provision section 233 of the Companies Act 2013 and rules 25 of companies rule compromise arrangement and amalgamation and the notifications as well. And after that we have just knew about that the sections in which it is contained. But what does fast track merger means literally? So section 233 of the Companies Act 2013 read with rule 25 of companies compromise arrangement and amalgamation came into force in 15 December 2016. It provides the concept of simplified merger. The importance of simplified merger and importance of simplified merger or significance of simplified merger is there is no requirement of court intervention. It means we do not have to take the approval of NCLT. We can skip a step by doing a fast track merger. And now we have to discuss about that introduction of fast track merger. But on whom it would be applied? So that will be elaborated by my teammate Pooja Goswami. Pooja Goswami, over to you. Thank you, Anmol. Here I am present to present the applicability. फास्ट ट्रैक मर्जर पे क्या क्या एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनीज अप्लाई कर सकती है फास्ट ट्रैक मर्जर पे. टू और मोर स्मॉल कंपनीज जा सकते हैं फास्ट ट्रैक मर्जर पे बिटवीन अ होल्डिंग एंड इट्स होल्डिंग और सब्सिडरीज. होल्डिंग कंपनीज भी जा सकती है फास्ट ट्रैक मर्जर पे. such other class of companies as may be prescribed. Such other class of companies में मैं further आपको बताना चाहती हूँ कि टू और मोर स्टार्टअप कंपनीज हो सकती है, वन और मोर स्टार्टअप कंपनीज विद वन और मोर स्मॉल कंपनीज. स्मॉल कंपनीज का मतलब है 2+85 ऑफ द कंपनीज एक्ट. जो 2+85 कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है वो स्मॉल कंपनीज होती है. नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी बेनिफिट्स ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर. बेनिफिट्स बहुत तरीके के होते हैं. सबसे फर्स्ट बेनिफिट है नो मैंडेटरी अप्रूवल ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रिक्वायर्ड. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जो अप्रूवल है, अगर हम मर्जर करते हैं तो 6 से 7 मंथ लगते हैं जो फास्ट ट्रैक मर्जर ना करके कुछ और मर्जर करते हैं उसमें. पर अगर हम फास्ट ट्रैक मर्जर जाते हैं तो उसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की रिक्वायरमेंट नहीं है. नो नीड ऑफ इशूइंग पब्लिक एडवर्टाइजमेंट. जैसे हम बेसिकली देखते हैं कि पब्लिक एडवर्टाइजमेंट बड़ी बड़ी कंपनीज की जरूरत होती है. जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेज में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं. अगर फास्ट ट्रैक मर्जर में जाते हैं तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है. नो कोर्ट कन्वेन मीटिंग एंड लेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग कॉस्ट. मतलब प्रोसेसिंग कॉस्ट बर्डन कम होता है कंपनीज पे अगर जो फास्ट ट्रैक मर्जर चूज करती है तो. नेक्स्ट पॉइंट है आपका फास्ट ट्रैक मर्जर पे सीरीज ऑफ हियरिंग में भी अवॉइड. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो बिग बिग कंपनीज की मर्जर होती है उसमें ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाता है और उसमें एनसीएलटी की हियरिंग बहुत ज्यादा होती है. पर फास्ट ट्रैक मर्जर पे जाते हैं तो एनसीएलटी की हियरिंग अवॉइड होती है और बहुत ही कम हियरिंग होती है. रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्ट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ ट्रांसफरर कंपनीज विदाउट बाइंडिंग अप. इसका मतलब ये है कि जैसे जो कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है वो डिसॉल्व हो जाएगी विदाउट बाइंडिंग अप अप्रूवल. जो इसकी जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर कंपनी में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी अंडर अ फास्ट ट्रैक मर्जर. एंड सेवंथ लास्ट की
टाइम सेविंग, इसमें टाइम भी बहुत ही कम लगता है। अब मैं आपको कुछ फॉर्म्स बताना चाहती हूँ जो फास्ट ट्रैक मर्जर पे जाते हैं तो एप्लीकेबल होते हैं। फॉर्म से CAA 9, जिसका मतलब है नोटिस ऑफ इनवाइटिंग फॉर सजेशन ऑफ और ऑब्जेक्शन। एक फॉर्म है CAA 10, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। एंड थर्ड फॉर्म है CAA 11, जिसका नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ मर्जर है। CAE 12 है, फॉर्म कंफर्मेशन ऑफ मर्जर। INC 28 लगता है, नोटिस ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट। एंड GNL 1, फाइलिंग द एप्लीकेशन with ROC, Register of Companies page. Next further will be continued by Himanshu by EDP mails. Hello, now we know about the applicabilities, the benefits, about the fast track merger. Now let's come to the legal and procedural aspects. First of all, we need to check our articles of associations and memorandum of associations. Both of the transfer and the transferee companies required to have the authorization in their object clause in MOA and AOA. If not, then we need to alter them as per section 13 and 14 of Companies Act 13 by passing special resolution. So there is an overview, or you can say the timeline events which are occur in the fast track merger, like board approvals and meeting of shareholders, creditors. Then we place the approved scheme to the central government for their approval, which is required to be given. Central government which is required to given their approval within the 60 days of such filing. If not, then it is treated as deemed approval, which we gonna discuss in further slides. So now next question is, what is the process? What are the steps that are required in the fast track merger? So this is the whole process which are required to be done for the fast track merger, which we gonna discuss in step by step. So first step is issue of notice. Issue of notice for the board meeting, whose rights are going to effective. Now each company is required to file a declaration of solvency in form CAA 10 to the registrar of the companies where the registered case यत् समुद्र स हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत् संतति, अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं और उस देश की संतान को भारतीय कहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं उपस्थित युवा शक्ति, मैं प्रथम गुप्ता उरई शहर जिला जालौन उत्तर प्रदेश से नोएडा चैप्टर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की ओर से आप सभी के समक्ष फास्ट ट्रैक मर्जर विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। As my friends Anmol, Pooja, Himanshu already said about the fast track merger. Fast track merger is a very new concept which is introduced by the Companies Act 2013 for the very main reason ease of doing business. और कोई कारण नहीं, ease of doing business. अब मेरा सवाल ये होता है कि merger and acquisition का section तो 232 भी बताता है, 232, 230, 231, 232. What is the need for section 233 fast track merger? Anyone? My colleagues, friends, कोई बताना चाहेगा कि नॉर्मल मर्जर से फास्ट ट्रैक मर्जर किस पॉइंट पे डिफरेंट है? जी, एनी अदर पॉइंट? NCLT. Very good. No mandatory approval of NCLT make the fast track merger different from and unique from section 230 to 232. अब बात क्या आती है? हमने ये तो देख लिया कि पहले बोर्ड मीटिंग का अप्रूवल चाहिए। सबसे पहले सॉरी मैं करेक्ट करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मेरे फ्रेंड अनमोल ने बताया कि सबसे पहले ऑथराइजेशन होना चाहिए एओ का, फिर एमओए में आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हम लोग मर्ज कर सकते हैं। उसके बाद मानसू भाई ने मेरे को बताया कि यहाँ पे पहले हम लोग को बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी, उसके बाद जनरल मीटिंग मेंबर्स की मीटिंग होगी एंड देन आफ्टर क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी। क्रेडिटर्स की मीटिंग सिर्फ उसी केस में होते हैं कंपनी के पास क्रेडिटर्स हैं इफ एनी। अब आफ्टर दैट क्या होगा? एनसीएलटी का तो कोई रूट ही नहीं है, फिर इसमें ऐसा क्या अलग करना होगा? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, जो ट्रांसफरी कंपनी होगी, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, ट्रांसफर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफर कंपनी जो मर्ज होने वाली है, ट्रांसफरी कंपनी जिसमें मर्ज होगी, जो एक्जिस्टिंग कंपनी बाद में बचेगी। अब सारे कंप्लाइंस आएंगे ट्रांसफरी कंपनी के। ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को सबऑर्डिनेट कर दिया है, डेलीगेट कर दिया है आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को। तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, मतलब आरडी के पास जाएगी और वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी, कुछ फॉर्म फाइलिंग करेगी, जिसमें सबसे पहले मेन जो होता है वो होता है कॉपी होता है स्कीम, जो स्कीम उन्होंने ड्राफ्ट करी, अप्रूव करवाई, और उस स्कीम की कॉपी जो कि एग्री हुई है, अप्रूव की है मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स द्वारा, उसको हम लोग सबमिट करते हैं अलोंग विद द रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द मीटिंग में बोथ क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स।
ये कितने दिन में करना होता है? आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग विद इन 7 डेज ये फॉर्म फाइलिंग करनी होती है और एक कॉपी जो स्कीम मर्जर की कॉपी होती है इसको सबमिट करना होता है। इसके साथ कुछ फीस भी देनी होती है अलॉन्ग विद द फीस, और ये फीस किस सेक्शन में प्रोवाइड करती है? रूल्स एंड स्टेट रूल्स कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल्स 2014, तो उसमें सारी फीस लिखी हुई किस कंप्लायंस की क्या फीस हमको देनी है। फिर बात हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भाई आरडी को कॉपी दे दी, क्या किसी और को कॉपी देने की जरूरत लग रही है आपको? कोई बताएगा कि किसी और को भी कॉपी देनी है? मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्शंस हैं या सजेशंस हैं तो क्या होगा? उस केस में क्या होता है ना, आरडी के पास 30 दिन का समय मिलता है। आफ्टर द एक्सपायरी पीरियड 30 डेज का टाइम मिलता है। आरडी जो अगर सजेशंस एंड जो ऑब्जेक्शंस हैं अगर वो सस्टेनेबल नहीं है और आरडी को भी लगता है नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और क्रेडिटर्स के भी इंटरेस्ट में है, तो उसको 30 दिन के अंदर अप्रूव करना होता है। लेकिन अगर आरडी ने विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द स्कीम अगर इसको अप्रूव नहीं किया तो फिर ये मान लिया जाएगा कि आरडी को भी कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं है और कंफर्मेशन ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। अब तीसरा केस क्या बनता है कि सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस आरडी के पास पहुंचे और आरडी को लगता है नहीं भाई नहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, ये स्कीम और हम अप्रूव नहीं करेंगे। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में अब एनसीईआरटी की छोटी सी पिक्चर आ जाती है। वैसे तो कहते हैं कि एनसीईआरटी का रोल ही नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पे एक एनसीईआरटी की पिक्चर आती है। आरडी क्या करेगा? एक एप्लीकेशन देगा किसको? एनसीईआरटी को। फॉर्म होता है CA30। उस एप्लीकेशन में वो कहेगा कि अपने ऑब्जेक्शंस या सजेशंस बताएगा और रिक्वेस्ट करेगा एनसीईआरटी कि आप इस एप्लीकेशन को जो स्कीम आई है मेरे पास इसको सेक्शन 232 में कंसीडर करो। 232 इज अ लॉन्ग प्रोसेस जहाँ पे हर एक चेक पॉइंट पे देखा जाता है कि कंपनी सच में मर्जर एंड